and a very good morning to all my dear students. How are you, my dear children? Everyone fine? Now today in the science we'll be starting a new lesson number 6. So all of you open your textbooks on page number 41. The name of the lesson is We Need Food. Now why do we need food? That is what is the need of food in our body and what type of food we should eat. That all we are going to study today. So all of you will first write today's date, 17/10/2020, and here you will write class work. So today we are going to read about the different type of foods that we eat in our lunch, in our breakfast, in our dinner, what all type of food we eat and what we should eat to keep ourselves healthy, so that our bones become strong, our muscles are strong, so that we can work in a better way. If we play, we do exercise, then what type of exercises are needed and what precautions we should take to so that we don't fall ill. So the unit 6 or chapter 6, we need food. Now we will read. You can see here the picture of a little boy eating some food. Nowadays, dear children, you all love to eat pizzas and burgers, breads and sandwiches and biscuits and cookies. Now once in a while you eat, it is okay, but in regular you should not eat that type of food. It is called as the junk food, which is not good for our health. The growth of our body does not take place in the proper way if we eat such type of food. Now we'll read. We all need food. Food gives us energy, strength to work and play. It helps us to grow healthy and strong. Now we all need food. हम सबको किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की ज़रूरत पड़ती है. और फूड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी और द स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले. मतलब जो हम काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, वो सब के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है. वो स्ट्रेंथ हमको कहाँ से मिलती है? फूड में से मिलती है. हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है उस फूड में से, और जिससे हम अच्छे से वी कैन वर्क ऑल्सो एंड वी कैन प्ले ऑल्सो. इट हेल्प्स अस टू ग्रो. और हमको जो बच्चे होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, उनके जो है हाइट के लिए मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है फूड की ज़रूरत पड़ती है. तो जो इट हेल्प्स अस टू ग्रो, कैसा ग्रो करने के लिए? हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ग्रो करने के लिए हमको फूड की ज़रूरत पड़ती है. नाउ दिस इज़ योर डैबीज टाइम. नाउ सर्कल द थिंग्स यू फील आर टेस्टी but not good for your health. यहाँ पर बहुत सारी food items you can see. There are so many food items are given here. You have to circle the food items which are tasty. मतलब कि taste wise जो है आपको बहुत ही tempting लगती है, आपको उसको देखकर जो है मुंह में पानी आता है, खाने की इच्छा होती है, but which are not good for your health, जो हमारे health के लिए अच्छी नहीं है. Take the ones that are good for health but you don't like. Now we have to put a tick on the ones which are good for health but we don't like to eat those things. Now first you can see this is milk, egg, bread, butter, then these are your fruits, this is your rice, then omelette, banana, juice, french fries, this is your local cold drink sort of thing, then this is also juice, then this is your maize, this is cheese, this is ice cream, soup, pizza, meat and vegetables. Now we have to circle the things which are tempting. When you see, you tempt to eat those things but which are not good for our health. उनको circle. जैसे bread है, अभी तो bread जो है, अब जो है brown bread आती है, multigrain bread आती है, means now healthy versions of breads have come up, so it's okay that we eat those breads, but that too not in a regular basis. but जो पहले bread आती थी वो health के लिए अच्छी नहीं थी. So I have circled bread. Then it's your french fries which are not good for your health. Then cheese, regular cheese is also not good for your health. This is your ice cream that you should not eat regularly. Then is your pizzas which should not be eaten regularly. Remaining जितनी सारी चीज़ें हैं वो आप जो है अगर खाएंगे तो आप healthy रहेंगे. Now moving on to page number 42.
food groups. Now, food that we eat are divided into three main groups. जो भी फूड हम खाते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. कौन कौन से फूड हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, दैट विल कम टू नो. हियर फर्स्ट विल रीड डैबी वांट्स टू नो व्हाई शुड वी ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स. हमको सारे फूड ग्रुप्स में से फूड क्यों खाना चाहिए. तो ऑल द 3 फूड ग्रुप्स जो भी हमको दिए हैं उनमें से हमको सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाना चाहिए. पर क्यों खाना चाहिए? टू स्टे हेल्दी रहने के लिए हमको सब फूड ग्रुप्स में से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए. नाउ व्हाट आर दोस 3 फूड ग्रुप्स? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड मीन्स वो फूड जिसको खाकर हमको एनर्जी आती है काम करने की. देन बॉडी बिल्डिंग मीन्स जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एंड प्रोटेक्टिव फूड मीन्स विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस. मतलब कि हमको बीमार पड़ने से जो चीज़ें खाने से बचाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करती है, जो उस सबको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. बॉडी बिल्डिंग में जो ग्रोथ ईयर्स होते हैं जो बच्चों के, उसमें जो बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो बोन्स और मसल्स को जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो पूरा करते हैं, वो फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. और एनर्जी गिविंग फूड मीन्स जो काम हम रेगुलरली करते हैं, खेलते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, वो सब करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो द फूड दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड इज कॉल्ड एज द एनर्जी गिविंग फूड. नाउ we should eat all kinds of food in the right amount to stay healthy. Eating too much can make us fat and eating too little can make us weak. Now we should eat all kinds of food in the right amount. Now this is very important, is the right amount. मतलब हमको सारा खाना खाना चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होती है वो एक लिमिटेड होनी चाहिए कि इतना ही खाना है. ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू फील टेस्टी, यू लाइक दैट फूड, यू कीप ऑन ईटिंग एंड ओवर ईट करो. मतलब पेट भरने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझको बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अभी खाना है. जैसे आपके पास गुलाब जामुन आ गए, पाव भाजी आ गई, तो आपको कैसा लगता है खाने में? ओ गुलाब जामुन है, 2 खाए, अभी एक और खा लेते हैं, अभी एक और, ऐसे करके हम जो है 1-2 एक्स्ट्रा खा लेते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द ओवर ईटिंग. क्योंकि हमको वो फूड बहुत पसंद है, वो हमारा मनपसंद खाना है, तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं. इवन दो आवर स्टमक डज नॉट रिक्वायर, हमारा स्टमक ऐसा बोलता है कि नाउ इट इज़ फुल, इट इज़ ओवर, लेकिन हमारे को अभी भी ऐसा टेम्पटेशन होता है, अंदर से ऐसा फूड क्रेविंग होता है कि नहीं अभी हम थोड़ा सा और खा लेते हैं, बिकॉज वी लाइक इट. वी लव टू ईट द गुलाब जामुन्स, वी लव टू ईट द पाव भाजी. सो हमको ऐसा होता है कि नहीं हम थोड़ी क्वांटिटी और खा लें. सो दैट एक्स्ट्रा क्वांटिटी दैट वी ईट आफ्टर आवर स्टमक इज फुल, दैट इज कॉल्ड एज द ओवर ईटिंग. तो हम उसको ओवर ईटिंग कहते हैं. लेकिन अगर हम राइट अमाउंट में सारे फूड को खाएंगे, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड को, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो भी हम बीमार पड़ेंगे, और कम खाएंगे तो हमारा बॉडी कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा. मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि हम सारा काम अच्छे से कर सके. और फिर जब हमारा बॉडी वीक हो जाएगा तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी. जैसे बॉडी को बढ़ना चाहिए विद द राइजिंग एज, वैसे ग्रोथ नहीं होगी. और सेकेंडली हमारी बॉडी में जो है जल्दी से कोई भी डिसीज अटैक कर सकती है. Energy giving food like potato, rice, bread and sugar give us energy. They are called energy giving food. They also help our body to stay warm. Now what are the energy giving foods? All the food that gives us energy like potato, rice, bread, sugar, जितने भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, स्वीट पोटैटो हो गया, तो वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं जो हमको एनर्जी देती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पोटैटो हियर, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ राइस, दिस इज शुगर एंड दिस इज ब्रेड. ऑल दीज थिंग्स गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए. दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म. और जब हमारे बॉडी में प्रॉपर एनर्जी होगी तो हमारा बॉडी कैसा होगा? वार्म रहेगा. मतलब कि हमको हमारा बॉडी जो है जो एक रेगुलर टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का, वो मेंटेन होता है बाय द फूड दैट वी ईट विच गिव्स अस एनर्जी. अदरवाइज क्या होगा? हमारा बॉडी वीक होगा. और अगर हमारा बॉडी वीक होगा तो हमारा बॉडी का वो टेम्परेचर, द वार्मथ दैट शुड बी इनसाइड आवर बॉडी विल नॉट बी मेंटेन्ड.
Now next is your second type of food is your body building food. Milk, cheese, fish, eggs, pulses and meat help in building our body muscles. They are called as body building food. They also help us to grow and make our bones and teeth strong. Now what is the meaning of body building food? That means the food which helps in building our body muscles. हमारे जो muscles और जो bones हैं हमारे body के, जिसको build करने के लिए, जिनको strong बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो food हमको खाना चाहिए, that food items are called as the body building food. Now which are all the food that gives us the which makes our body muscles strong and which makes our bones strong, which makes our teeth also strong, like milk hai, cheese hai, fish hai, eggs hai, pulses. And now fish and eggs are the things are included in the non-vegetarian food. जो vegetarians होते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, they are called as a vegetarians, and the ones who eat the flesh of animals like egg, fish, meat etc. they are called as non-vegetarians. तो हम लोग जो मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस मतलब दालें हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम खाएंगे इन द प्रॉपर अमाउंट तो हमारे बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग भी होंगे, प्रॉपरली डेवलप भी होंगे और हमारे जो टीथ और बोन्स हैं जो हमारे बॉडी के वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे. डियर चिल्ड्रन, मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ. उसका रीज़न क्या है कि अगर मिल्क होता है उसमें बहुत सारे कैल्शियम होता है और वो कैल्शियम से हमारे बोन्स और जो टीथ होते हैं वो एकदम स्ट्रांग होते हैं. बोन्स जो और टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है और मिल्क के अंदर सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को एक प्रॉपर मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लीट फूड. मिल्क इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट फूड. उसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं. इसलिए हमेशा जो है ऑलवेज यू शुड ड्रिंक मिल्क to make your body healthy, strong and it should grow properly. Now know with Dappy, the main food of people of a place is called its staple food. Rice is the staple food of half of the world. Now what is the meaning of staple food? Staple food का मतलब क्या है कि जो फूड हम रेगुलरली रोज खाते हैं अपने डाइट में, रोज जिस फूड को हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्टेपल फूड. जैसे कि हम यहाँ पर क्या हम रोज क्या खाते हैं, हम वी ईट डेली वी ईट द चपातीज. सो चपाती इज मेड आउट ऑफ द व्हीट फ्लावर. सो व्हीट इज कॉल्ड एज द स्टेपल फूड ऑफ आवर गुजरात. कि इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर wheat खाए जाते हैं. There are many places in India like south of India, then West Bengal is there. So there people eat rice only. So rice is the staple food. उनका staple food क्या है, राइस है. और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, राइस ही सबसे ज़्यादा खाया जाता है वर्ल्ड में. सो दैट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब कि वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा लोग जो है वो राइस ही ज़्यादा खाते हैं अपने फूड में. You can see the picture of milk, cheese, fish, eggs and meat. These are the bodybuilding food. Now we move on to page number 43, protective food. Fruits, vegetables and nuts protect us from diseases. They are called protective food. Now the food you can see, this is a vegetable basket and so this is a fruit basket and this is a vegetable basket. That means that many different varieties of vegetables are there and many different varieties of fruits are there. Fruits and vegetables from season to season they get changed. In winter we get certain vegetables that we don't get in the summer. Same with the fruits also, in the winter we get certain types of fruits and those fruits we don't get in the summer. Like mango we get in summer only. Similar the vegetables like cauliflower, cabbage, carrot, radish, all these vegetables we get during the winter season. Spinach is there, fenugreek मेथी है, पालक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कब आती हैं, ठंडी में आती है. सो ऐसे बहुत सारे जैसे लौकी है, बॉटल गोर्ड है, बिटर गोर्ड है, ये सारे जो होते हैं वो समर में आते हैं. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड वी शुड ऑलवेज ईट ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. क्योंकि जो सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं those vegetables are set according to the season only. Supposing you are eating cucumber in the summer season, so cucumber, watermelon, muskmelon, these are all the vegetables and fruits that contain lot of water. तब गर्मी में हमको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, मतलब पसीना हमको बहुत आता है, तो हमारे बॉडी में से पानी जो है वो कम हो जाता है. लेकिन
जब हम कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, ऐसे सब चीज़ें खाते हैं तो उनके अंदर जो पानी होता है कंटेंट ऑफ वाटर इज़ टू हाई, मतलब कि 70-80% वो वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर पानी ही होता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है वो कम नहीं होता और वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं वो सब हमको खाने चाहिए, बिकॉज दे आर मेड अकॉर्डिंग टू द सीजन। गॉड हैज़ डिवाइडेड द सीजन्स एंड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंगली ओनली, कि कौन से सीजन में कौन सा वेजिटेबल और कौन सा फ्रूट खाना चाहिए। So we should eat all the fruits and vegetables and the nuts. Now what are nuts? Like almonds है, cashews है, almonds means बादाम, cashew means काजू, फिर उसके बाद अखरोट आता है which is called as the walnut, then pistachios are there जिसको कि हम पिस्ता बोलते हैं. So these are all the different types of nuts. So ये सारे nuts हमको क्या होने चाहिए? All these nuts also we should टेक इन आवर फूड। ये सब भी हमको खाने चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम? मतलब कि जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो सिस्टम हमारे बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए हमको वो सारी चीज़ें खानी चाहिए। Water is very important for us. Water forms a major part of the blood. It helps to throw out waste from the body. Water also carries food around the body. It is important to drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Now, next is a very important essential component of our food is the water. Water is very important for us because in the daily routine we should at least drink 8 to 10 glasses of water, so that the waste that gets accumulated in our body also is thrown out with the help of the water. Whatever we eat in our body, whatever we drink, so certain things are absorbed by our body and certain things are not absorbed by our body. मतलब जो भी हम रोज खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कुछ चीज़ें बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तो वो नहीं लेती है, तो वो वेस्ट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर। तो उसको, उस वेस्ट को हमारे बॉडी में से बाहर निकालने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वाटर जो है वो ब्लड का मेजर पार्ट है, वाटर है। और उसके बाद जो है वाटर जो है वो ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में भी मदद करता है, और जो फूड हम खाते हैं उसको भी पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में वाटर बहुत मदद करता है। इसलिए हमको रेगुलर में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ पानी तो पीना ही चाहिए, बट वी शुड सी दैट वी शुड नॉट ड्रिंक मोर देन द अमाउंट नीडेड, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमारे बॉडी को उस पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होगी, जो कि हमारे अदर ऑर्गन्स को उस पानी को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। इसलिए पानी पीना चाहिए, लेकिन अप टू 8 to 10 ग्लासेस, जिससे हमारे बॉडी के सारे वेस्ट भी बाहर निकल जाए और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे बॉडी के अंदर वो अच्छे से हो। Now, depending on their food habits, people can either be vegetarians or they can be non-vegetarians. Non-vegetarians cook and eat meat of animals like goat and hen. They also eat eggs and some sea animals like fish, prawn, etc. Vegetarians eat only plants and plant products. They do not eat meat and eggs. Now, depending upon the food habits, मतलब कि depending upon the type of food that we eat, so that we can divide the people into two types. One is the vegetarians and other is the non-vegetarians. Now, who are non-vegetarians? Non-vegetarians are the people who cook and eat the meat of the animals like goat, hen, lamb, etc. And they also eat the eggs also. Then they eat some of the sea animals, मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले जीवों को भी कुछ लोग खाते हैं, जैसे कि फिश है, क्रैब है, प्रॉन्स है, इन सब को भी खाते हैं। सो वो लोग जो इन सब चीज़ों को खाते हैं, मीट को, फिश को, क्रैब्स को, प्रॉन्स को, वो लोगों को हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। नाउ वेजिटेरियन पीपल कौन से होते हैं? वेजिटेरियन पीपल वो लोग होते हैं जो खाली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, व्हाट इज अ प्लांट प्रोडक्ट? लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, पल्सेस है, दीज आर ऑल द प्लांट प्रोडक्ट्स। सो दे ईट दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ओनली वंस विच ग्रो ऑन द प्लांट, जो पेड़ों पे उगते हैं और उन्हीं को वो खाते हैं, उनको हम वेजिटेरियंस कहते हैं। दे डू नॉट ईट मीट एंड एग्स, सो दीज पीपल आर कॉल्ड एज द वेजिटेरियन पीपल। नाउ वी विल नॉट डू दिस द टाइम ऑफ द लंच एंड स्नैक, दैट वी आर गोइंग टू omit. Now we move on to page number 44. Now, meal. What is the meaning of meal? Meal is the food we eat at a fixed time every day. हम रोज जो एक फिक्स टाइम पे जब हम जो चीज़ खाना खाते हैं उसको हम मील बोलते हैं।
when we eat 3 meals on in a day, मतलब हम दिन में कितने मील्स खाते हैं? 3 meals we eat in a day, and which are they are breakfast, lunch and dinner. द मॉर्निंग में जो हम खाते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, जो दिन में जो हम खाना खाते हैं उसको लंच कहते हैं, और रात में जो हम खाना खाते हैं उसको हम डिनर कहते हैं. सो बेसिकली वी ईट 3 meals इन अ डे. हमारा जो फिक्स टाइम है मील्स के वो 3 है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड एट नाइट. इन बिटवीन maybe we eat a small meal that is called as a snack. और कभी कभी शायद लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कभी भूख लग जाती है अगर आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया है, या लंच और डिनर के बीच में नॉर्मली इन द इवनिंग वी हैव सम स्नैक्स, सो दैट इज कॉल्ड एज द स्नैक. एंड वी मस्ट ईट आवर मेन मील्स एट फिक्स टाइम्स. और हम जो अपने मेन मील्स होते हैं, दैट इज योर breakfast, lunch and dinner, that we eat at the fixed time only. So what are the meals? The 3 meals means the food that we eat every day at a fixed time. एक fixed time पे जो हम खाना खाते हैं, that is called as the meal. And always you should have a very healthy breakfast in the morning, because once you have a good breakfast in the morning, the whole day you will get the energy and the strength to do the work whole day. अगर आपका breakfast अच्छा नहीं होगा, healthy नहीं होगा, और properly अगर आपने breakfast नहीं किया होगा, तो आप पूरे दिन जो है काम, आपको वो strength नहीं मिलेगी काम करने के लिए. You will feel tired after some time. You will start feeling tiredness in your body. आपको काम करना नहीं अच्छा लगेगा, आपको थकान बहुत ज़्यादा होगी. Then lot of other problems will be there. You cannot work properly as you should do. So always have a good breakfast in the morning. Now next is your follow these good habits and become a super kid. मतलब एक सुपर किड बनने के लिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सुपर किड. ऐसा सुपर किड अगर आपको बनना है तो यू हैव टू डेवलप सर्टेन गुड ईटिंग हैबिट्स. मतलब कि आपको कुछ ईटिंग हैबिट्स जो है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी आपके अंदर, जिससे कि आप सुपर किड बन सकते हैं. एंड व्हेन यू विल बिकम अ सुपर किड, व्हेन यू विल डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स, you will stay healthy and disease free. What is the first habit? Wash your hands before and after eating meals. मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए. अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो आप कहाँ खेलने गए, आपने कुछ बुक्स लिया, किसी के साथ बात की, किसी के साथ हाथ मिलाया, तो वो जो भी जर्म्स है, वो डस्ट है, डर्ट है, जम्स है, वो सब आपके खाने के साथ आपके पेट के अंदर जाएगी और आपके अंदर डिजीज़ पैदा करेगी. इसलिए हमेशा खाना खाने से पहले अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोने चाहिए, और खाना खाने के बाद भी आपको अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए. ऑलवेज ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड. मतलब जो खाना आप खाते हैं वो एकदम ताज़ा बना हुआ होना चाहिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए. अगर खाना अच्छे से पका हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कच्चा रहेगा थोड़ा तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा और आप अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड में से आपको मिलना चाहिए वो आपको अच्छे से प्रॉपरली नहीं मिलेंगे अगर वो फूड अच्छे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर. और फ्रेश ही फूड खाना चाहिए, क्योंकि अगर फूड बासी होगा, अगर स्टेल फूड होगा तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं. इसलिए हमको वैसा खाना नहीं खाना चाहिए. ऑलवेज ईट फूड एट क्लीन प्लेस. दैट मीन्स द प्लेस वेयर यू सिट एंड ईट योर फूड शुड बी कम्प्लीटली फ्री, सो दैट देयर आर नो फ्लाइज, नो इंसेक्ट्स, नथिंग अराउंड दैट प्लेस वेयर यू सिट एंड ईट. एकदम क्लीन प्लेस में खाना चाहिए, इसलिए आपका खाने के अंदर कोई भी जो है जर्म्स या गंदगी ना जाए. ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेरी वेल. मतलब आराम से अच्छे से चबाकर खाने को खाना चाहिए, जिससे कि जो खाना इजीली आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो सके. डू नॉट बाई स्नैक्स एंड कट फ्रूट्स फ्रॉम द रोड साइड हॉकर्स. मतलब जो रोड साइड पे खड़े जो भी हॉकर्स होते हैं, लारी होती है, उसमें से कटे हुए फ्रूट्स या कोई भी स्नैक्स वहाँ से नहीं लेना चाहिए. जैसे कि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी लारियाँ होती है, पानी पूरी की है, भजिया की है, फाफड़ा जलेबी की है. सो वो सारी लारियों में से वो फूड हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ओपन में होता है, तो देयर इज लॉट ऑफ डस्ट एंड डर्ट दैट गेट्स gathered on the top of the food, and the flies also come and sit on that food, so which makes you ill. So we should not eat that type of fruit. Then eat plenty of fruit and vegetables. हमको plenty of fruits and vegetables खाने चाहिए, but avoid eating junk food. लेकिन junk food नहीं खाना चाहिए. What are the junk foods? Like the pizzas, burgers, then
फ्रेंच फ्राइज है, वो सारी चीज़ें जो है जंक फूड में आती हैं, जो आप कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस यू शुड नॉट ईट दोज फूड्स, बिकॉज वो आपके बॉडी के अंदर जो है फैट डेवलप करती है। कोई भी हेल्दी कंटेंट उन फूड के अंदर नहीं होता जो हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा हो। ऐसा ही होता है जिससे हमारा बॉडी का वेट बढ़ता है, लेकिन अच्छे कोई हेल्दी उसके अंदर हमको वो न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, हमको रोज 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क के अंदर एक मिनरल होता है विच इज कॉल्ड एज द कैल्शियम, जो आपके बोन्स और टीथ को एकदम स्ट्रांग बनाता है। अगर आपके अंदर आपके बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो आपका टीथ भी स्ट्रांग नहीं होंगे और आपके बोन्स भी स्ट्रांग नहीं होंगे, और बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर आप खेल रहे हैं कहीं पर गिर गए तो तुरंत क्या होगा, आपका जो बोन्स है वो ब्रेक हो जाएगा, आपकी हड्डी जो है वह टूट जाएगी या उसको कुछ जो है डिफेक्ट आ जाएगा, और आपके दांत भी स्ट्रांग नहीं होंगे। ईट अ लिटिल लेस देन व्हाट यू कैन, और हमेशा अच्छे से, मतलब क्या होना चाहिए कि थोड़ा जो खा सकते हैं उसे थोड़ा सा कम खाइए, जिससे कि आपके स्टमक को डाइजेशन में ईजी रहे। नेवर ओवर ईट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नाउ हियर इट इज़, take the test. Give yourself 1 point for every yes. Do you drink your milk every day? Yes. Do you wash your hands before and after eating? Yes. Do you eat all fruits and vegetables? Yes. Do you rinse your mouth after eating? Yes. Rinse your mouth मतलब आप खाना खाने के बाद अच्छे से आपका मुंह अच्छे पानी से साफ करना चाहिए, नहीं तो जो जर्म्स होते हैं, जो फूड है, तो वो आपके दांत में या गम्स में स्टिक हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपके दांत सड़ने लगेंगे, और आफ्टर सम टाइम्स योर टूथ विल टोटली गेट डीकेड, जिसको कि आपको फिर वो दांत को निकालना पड़ेगा। इससे ज़्यादा चॉकलेट्स भी नहीं खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्वीट्स भी नहीं खाने चाहिए जो हमारे दांत को खराब करते हो। और अगर ऐसा कुछ खाते हैं, आइसक्रीम्स भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आप खाते हैं तो अच्छे से आपको दांत साफ करने चाहिए। एंड इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड ऑलवेज ब्रश योर टीथ। देन chew your food properly. Do you chew your food properly? Yes. So what's your score? My score is 5. That means I am a super kid. Dear children, we'll start the exercise in the textbook. This is your question number A. Fill in the blanks. You have to write it in classwork one time in a notebook. Body building food helps us in building our body muscles. Then fruits, vegetables and nuts protect us from diseases. We must chew our food well. Milk contains calcium, which is good for our bones and teeth. We must eat plenty of fruits and vegetables. Vegetarians do not eat meat and eggs. Now next is your question number B. Answer the following questions. This also you have to write it in your notebook one time classwork. Why do we need food? Answer 1 is food gives us energy to do work and play. It helps us to grow strong and healthy. Moving on to page number 46. Second question. Why does our body need water? Our body needs water because it helps in the formation of blood, carries blood around our body, and helps to throw out waste from the body. Then question number 3. What are the 3 main groups which we can divide our food into? Food can be divided into 3 groups, which are your energy building food, body building food and protective food. Question number 4. Who are non-vegetarians? People who cook and eat the meat of animals like goat, fish, hen, etc. and also eat eggs, and some sea animals like crab, prawns, etc. are called as non-vegetarians. Now define meals. Name the 3 main meals we eat in a day. Meal is the food we eat at fixed time every day. Then the 3 meals are breakfast, lunch and dinner. Now next is write any 4 good eating habits. This is your C question, classwork one time in notebook. Wash your hands before and after eating. Then always eat fresh and well cooked food. Then always eat food at a clean place. Then eat slowly and chew the food well. Now next is your give question number D. Give 2 examples of the following. This also you have to write it in your notebook classwork one time. Energy giving food, potato and sugar. Bodybuilding food, milk and egg. Protective food, fruits and nuts. Page number 47. Discuss in class
Why is overeating not a good habit? Overeating is not a good habit because it increases our weight and lots of problems arises out of it. Now, if your friend forgets to bring a tiffin from home, what will you do? Now, if I will share my tiffin with my friend. Here you have to draw the pictures of the food items, energy giving food, bodybuilding food and protective food. You also have to draw and also you have to color those food items also. Now in energy giving food I have drawn a potato. You have to color it, and then bodybuilding food, egg and milk, and in protective food I have drawn apple, cashew and almond. Nuts और fruits सब draw किया हुआ है, इनको आपको color करना है. ऐसे आप ड्रॉ भी करेंगे एंड देन यू हैव टू कलर इट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज योर डैबीज वेब चार्ट. नाउ दिस इज योर वेब चार्ट. Types of food. In first, energy giving food, what type of food we take in energy giving food? Sugar is already given. Then next is your bread. Bodybuilding food, milk and cheese. And protective food, fruits and nuts. So dear children, I hope you all have understood the importance of all the fruits and vegetables, pulses, cereals that we take in our food, which is very important for our healthy growth and proper growth of our body and mind. So you all should eat your balanced food and eat lots of fruits and vegetables and stay healthy. Now this lesson of we need food is over. Now we'll be doing the hard words of this lesson. There are few hard words that you have to write it in your notebook. Classwork one time. Energy, strength, healthy, strong, energy giving food, staple, disease, waste, non-vegetarians, snack, calcium, junk food, body building food, protective food, cheese, building, muscles, protect, blood, vegetarians, meal, cooked, hawkers, and calcium. So these are the hard words that you have to write it in your notebook one time, classwork, and all the questions from A to D in the textbook also you have to write it in your notebook one time. You have to complete your textbook also and do it in notebook also. So now we meet on the next turn. Till then, bye bye and have a nice time.